everyone, this is Priyanshi Goyal, a company secretary from Delhi. And this is CS Divesh Goyal, a practicing company secretary from Delhi. So today in this video, we are going to discuss on the queries of the DPT3. So we have received these queries through different social media group and a WhatsApp group Gyan Gurukul. So combinedly today we will discuss on this. Priyanshi will ask the questions and I will try my best to answer all those questions for the benefit of all the viewer of this video. So can we start? Yeah, we can start. So let's start with the first question we have received. What is the due date of DPT3? The due date of the DPT3 for every company is the 30th June. Companies have to file this form within 90 days from the end of the financial year. So for the financial year ended 31st March 2023, the due date is 30th June 2023. Okay. So complete your filings by 30th June 2023. So the next question is, what is the applicability of the form DPT3? So बहुत confusion रहता है कि किस company पे applicable होता है, किस पर नहीं होता. So please clear the doubt. See, जब हम applicability की बात करते हैं ना DPT3 में कुछ कंपनीज को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया है, जैसे नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. These 4 companies are not required to file the DPT3 with the ROC. Okay, so it means small company पे भी applicable होगा? Yes, चाहे small हो, listed हो, unlisted हो, every type of companies have to file this form except the 4 categories which we have discussed. Okay, so I hope आपका doubt clear हो गया हो. So next question की तरफ बढ़े? Yes. Okay, so question number 3. If a company is having only exempted deposits, whether such company is required to file DPT3? Okay, it is a very good question because deposit are 2 types, exempted and non-exempted deposit. So the question is specific about the exempted deposit. Exempted deposit के केस में क्या है कि आपको DPT फाइल करना मैंडेटरी है, because DPT3 is a provision कि चाहे आपके exempted deposit हो या non-exempted deposit हो, दोनों सिचुएशन में ही आपको फाइल करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिर्फ लोन फ्रॉम डायरेक्टर है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर इज exempted deposit, बट इसके लिए भी आपको DPT3 फाइल करना पड़ेगा. Question number 4. What are the changes in DPT3 for this financial year? So as we know, the MCA has shifted from V2 to V3 portal. So due to this shift, we want to know कि इस change shift की वजह से क्या changes आए हैं. Right. So अब V2 to V3 पोर्टल पे कन्वर्ट होने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम DPT3 फाइल कर रहे हैं. तो DPT3 फॉर्म में काफी सारे मिनिस्ट्री ने चेंजेस किए हैं. लाइक पहले वेब ई फॉर्म होता था, अब ये वेब फॉर्म हो गया है. वेब फॉर्म होने के साथ काफी सारी न्यू इंफॉर्मेशन भी मांगी है. जैसे कि पहले DPT3 में क्या होता था कि आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग लोन्स और एडवांसेस की डिटेल देना होता था DPT3 में, बट अब हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग लोन्स की डिटेल नहीं देनी है, हमें डिटेल देनी है लोन्स एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में क्या लोन्स और एडवांसेस थे, ड्यूरिंग द ईयर क्या ऐड हुए हैं, क्या रीपे हुए हैं, देन वी हैव टू शो द फाइनल अमाउंट. सो दिस ईयर DPT3 बनाना उतना इजी नहीं होगा जितना प्रीवियस ईयर्स में होता था, बिकॉज दिस ईयर हमें बहुत सारी फिगर्स कंपनी से लेनी पड़ेगी इस फॉर्म्स को प्रिपेयर करने के लिए. सो दिस विल बी अ न्यू टास्क दिस ईयर फॉर द प्रोफेशनल्स. Question number 5. In which case auditor certificate is mandatory to be attached? ये क्वेश्चन बहुत लोगों से हमको आया है एंड प्रोफेशनल बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है इस केस में. ओके, सो देखो, देयर आर द 2 सिचुएशन. एक है कि ऑडिटर सर्टिफिकेशन, एक है ऑडिटर से फॉर्म सर्टिफिकेशन करवाना. अभी हम इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैं आंसर करूंगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हम ऑडिटर से सर्टिफिकेट चाहिए. अगर जब भी आप DPT3 फाइल करते हो और DPT3 फाइल करते वक्त अगर आप डिपॉजिट्स के लिए फाइल कर रहे हो, मतलब आपकी कंपनी में नॉन डिपॉजिट के अलावा डिपॉजिट वाला ट्रांजैक्शन भी है. जब आप रिमोट बटन पे क्लिक करते हो DPT3 में, अगर आपने डिपॉजिट वाले पे क्लिक किया है, उन एवरी फॉर्म्स में जहां डिपॉजिट पे क्लिक हुआ है आपको ऑडिटर से, और ऑडिटर में भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और वो सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में अटैच करना पड़ेगा. Okay, so I hope the doubt is clear. So let's move forward to the next question. Yes. Question number 6. Is the form DPT3 is required to be certified by a professional? क्या ये फॉर्म एक प्रोफेशनल से सर्टिफाई करवाना जरूरी है? एंड अगर जरूरी है तो कौन से प्रोफेशनल से? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर सर्टिफिकेट के बारे में. यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन ऑफ द ई फॉर्म, जो हम फॉर्म को डिजिटली सिग्नेचर लगा के सर्टिफाई करवाते हैं. तो DPT3 एक ऐसा फॉर्म है जो प्रैक्टिकली प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो रिक्वायरमेंट नहीं है ये सिर्फ लास्ट ईयर तक था. Okay. इस ईयर जो फॉर्म में चेंजेस आए हैं V2 से जो V3 पे ट्रांसफर हो गया है, दिस ईयर एवरी DPT3
चाहे आप डिपॉजिट के लिए फाइल कर रहे हो या नॉन डिपॉजिट के लिए फाइल कर रहे हो, every DPT3 is required to be certified by the statutory auditor of the company. Okay, तो ऐसा नहीं है कि कोई CS से या कोई आउटसाइडर चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप करवा सकते हैं. इट इज मैंडेटरी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही सर्टिफाई करेगा. Okay, so this is the new feature. You have to get it certified by a statutory auditor, Yes. right? Let's move to the seventh question. So is DPT3 a STP form? DPT3 लास्ट ईयर तक STP फॉर्म नहीं था, बट दिस ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो V3 पे फॉर्म्स ट्रांसफर किए हैं, तो काफी सारे फॉर्म्स को STP फॉर्म्स की कैटेगरी में डाल दिया है. तो जो वो काफी सारे फॉर्म्स उन्होंने STP फॉर्म्स की जो कैटेगरी में डाल दिए हैं, उसमें से एक है DPT3. सो दिस ईयर चाहे आपका DPT3 किसी भी पर्पस से फाइल हुआ हो, इट इज एन STP मोड फॉर्म. Okay. So let's move forward to question number 8. यस. Question number 8. If the company does not have any outstanding amount as on 31st March 2023, is form DPT3 still required to be filed? Or we can say a nil return of DPT3 can also required to be filed? ओके, सो अगर हम बात करते हैं नील DPT3 की या नॉन आउटस्टैंडिंग अमाउंट की, DPT3 फॉर्म जो डिजाइन हुआ है वो इसी बेस पे डिजाइन हुआ फॉर्म है. Until unless अगर हम कोई फिगर मेंशन नहीं करते DPT3 में, तो वी कैन नॉट फाइल दिस फॉर्म. सो वी कैन से कि नील के केस में या जीरो आउटस्टैंडिंग के केस में DPT3 हमें फाइल नहीं करना है. Okay, so conclusion ये है कि नील के केस में हमको फाइल करना ही नहीं. बिल्कुल. Okay, so let's move to the next question. Question number 9. If a company is having a loan only from a director, in that case a company is required to file DPT3? Again ये question बहुत सारे लोगों से आया हमको. ओके, सो एज वी नो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी बहुत सारी जगह से लोन ले सकती है. उसमें से एक सोर्स है लोन फ्रॉम डायरेक्टर. जनरली क्या होता है, ये सबसे इजीएस्ट सोर्स होता है डायरेक्टर से लोन लेना, और डायरेक्टर से लोन हमारा प्रैक्टिकली एग्जम्प्टेड कैटेगरी में भी फॉल करता है. दिस इज अलाउड फॉर ऑल द टाइप ऑफ कंपनीज, वेदर प्राइवेट, पब्लिक, ऑल द कंपनीज. सो अगर चाहे सिर्फ आपकी बैलेंस शीट में जो 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट होगी, उसमें जो आउटस्टैंडिंग लोन है, इफ वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर से भी हुआ तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा DPT3. बिकॉज DPT3 का जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये है कि अगर कंपनी ने कहीं से भी लोन लिया हुआ है, डजंट मैटर डायरेक्टर और एनी अदर सोर्सेज, कहीं से भी लोन लिया हुआ है और वो लोन अगर 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, then you have to file the DPT3. There is no exemption in that case. Okay, so we have to file DPT3. There is no exemption. Yes. Okay. So आज का लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं. Yes. So question number 10. Whether figures mentioned under DPT3 can differ from audited financial statement. Again, this is a very common question. Because जब DPT3 फाइल करते हैं, बनाते हैं उसको, तो वो अनऑडिटेड बैलेंस शीट से बनाते हैं, लेकिन जब ऑडिट करते हैं तब अमाउंट डिफर कर जाता है. तो इज इट अलाउड? सी, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. जब भी हम सेमिनार्स में बात करते हैं या किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, हमेशा यही आता है कि DPT3 की ड्यू डेट है 30 जून और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं अगस्त मंथ में और सितंबर मंथ में. तो डेफिनेटली जून मंथ में हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं होते हैं. बट अब लॉ मेकर्स ने जो भी प्रोविजंस बनाए हैं, प्रोविजंस ऐसे हैं कि DPT3 में जो फिगर्स आएगी ना, जो आपकी लोन्स की फिगर्स आएगी, जो आपकी एडवांसेस की फिगर्स आएगी, दोस फिगर्स शुड नॉट वेरी फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऑल दो 30 जून की डेट में आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट आपको अपने लोन्स के लिए, अपने एडवांसेस के लिए फाइनेंशियल्स को क्लोज करना पड़ेगा. सो दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जो आपने फिगर्स मेंशन किए हैं DPT3 में, वो वेरी नहीं करने चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. एंड दिस ईयर, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी बोला था कि ऑडिटर्स को DPT3 सर्टिफाई करना है, तो ऑडिटर ये सर्टिफाई नहीं कर सकते कि DPT3 के टाइम फिगर अलग थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते वक्त फिगर अलग है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो फिगर हम DPT3 में मेंशन करेंगे, वही सेम फिगर हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मेंशन होना चाहिए. Okay, so I hope the doubt is clear. So hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे. If you still have any doubt, any question on the DPT3, please mention in the chat box or the comment box so that we can cover that questions in the next video. Even we have prepared a Google form also. Google form का link हम bio में mention कर देंगे. So Google form के through भी आप अपनी queries raise कर सकते हो. So for more such updates, please like our channel FCS Devesh Goyal. Thank you. Thank you.